Thank you very much for joining me on Frankly Speaking, Mr. Anurag Thakur, Union Sports and Information and Broadcasting Minister. Is it a good time for you as a minister with G20 preparations happening on the one side and politics raging just so hot like never before, like the summer of today? I think we forgot one area of sports where we're doing extremely well. Absolutely. So why not start with sports? I mean, if you look at the sports, the way India is doing so well now, in many fields where we were no voice, never heard of India, even qualifying for such events, look at athletics. The way Neeraj Chopra has done well, not only Neeraj Chopra, he has done well time and again. He has made India proud, but at the same time, among the top 6 position in the javelin, first number Neeraj Chopra, 5th number Kishore Jaina, and the 6th is Manu DP. And look at the track and field event, 4x400 meter relay. There India not only qualified but also broke the national record and the Asian record. I think India is doing extremely well if you look at the field of wrestling. Antim Phangal to Savita to Priya, they become the world champions under the under-20. Antim has won it twice. You know, last time and this time also. Look at chess, Pragnanda, 18-year-old boy, reached the World Cup finals. Next, Asian hockey, Asian Championship. Junior, men's and women, both titles are with India. Senior also, India beat Malaysia in the finals and became the champion. Shooting, we won the medals again. And Thomas Cup in badminton, now Satvik, Sairaj and Mr. Reddy. Chirag Shetty Reddy. There's no doubt that India one is after shining. Another game, we are doing well. Look at boxing, we got 4 world champions, the women. So I think India is doing extremely well in the field of sports, where we were a no voice, we weren't seen as a big force. Today, Navika ji, if you look at this number, World University Games, India won only 18 medals in 60 years. But this year alone, we won 26 medals, including 10 gold. That is the power of India now. Look at Olympics, we won 7 medals, then Paralympics 19, and Development 20. Commonwealth Game 22 gold medal, highest ever. Because Prime Minister Modi pumped in a lot of money, raised the budget 3 times, started scheme like TOPS. Not only that, he meets sportsperson, motivate them, and meet their families also. No other leader in the world does that. Prime Minister Modi does that in the field of sports. I think that is the power. Now you talked about G20 to the... No, but before we go to the G20, I want to ask you, while we are talking about our achievements in the field of sports, the fact is that the Wrestling Federation of India cannot use the Indian flag, and that is because of the controversies, because your party man has been accused of sexual misdemeanors, and our title to play as a country there has been taken away, our right has been taken away. Isn't that something that will hit India's image abroad? Navika ji, let me just say this. If you look at the wrestlers' performance, we have won medal after another in the last 6 months also. The IOA has formed the ad hoc committee. They are doing extremely well. They have picked the right teams, right players, and they won the gold medals. It is in front of you. तिरंगा वहाँ लहरा नहीं सकता, ऐसा नहीं, हमारा राष्ट्रगीत वहाँ हो नहीं सकता। सुनिए तो सही, अब उसमें क्या है, आप इलेक्शन करवा रहे हैं, किसी राज्य में कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है, कोर्ट उस पर स्टे देता है और अगली सुनवाई करता है। ये इलेक्शन प्रोसेस ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनकी अध्यक्षता में होते हैं, वो कर रहे हैं और वर्ल्ड बॉडी के साथ आईयूए बात कर रही है, एंड आई एम वेरी श्योर दे गोना रिजॉल्व दिस। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात है। हमें खेलों पर, खिलाड़ियों पर, उनकी परफॉर्मेंस पे फोकस करना है और विश्वास मानिए एशियन गेम्स में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आज तक की हमारा इस आने वाले एशियन गेम्स में आने की उम्मीद है। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि खिलाड़ियों पर हम फोकस रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश का तिरंगा नहीं अगर वहाँ लहराता तो ये इम्पोर्टेंट बात नहीं। ऐसा नहीं है नाविका जी, हर जगह लहराया जाता है तिरंगा। जब देश के अंदर जम्मू कश्मीर में नहीं लहराया जाता था, तब आप जैसे पत्रकार भी बैठकर पूछते थे कब लहराएंगे।
हमने कहा था जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तब जाके लाल चौक पे भी कश्मीर के घर घर पे तिरंगा लहराया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर पे तिरंगा झंडा लहराया गया, जो 75 साल में नहीं हुआ, 75वें साल में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते किया गया। ये तिरंगे की आन बान शान, ये जम्मू कश्मीर से लेके दुनिया भर की स्पोर्ट्स फील्ड से लेके चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा तक भी ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय हुई है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो जख्म जम्मू कश्मीर में दिए थे कांग्रेस ने, जहां तिरंगा झंडा जलाया जाता था, लहराने पर तो मुझ जैसे नेताओं को जेल में डाल देते थे। अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी को जेल में डाल दिया गया। जब मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा पर गया, आपको याद होगा, आप तो उस समय से इस चैनल के साथ ही हैं, बिल्कुल। तो ये आपकी आंखों के सामने घटा है। और उसी लाल चौक पर धूम धमाके के साथ आज आप तिरंगा लहराते देखते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन सवाल ये है, विपक्ष जो उठाता है, विपक्ष का कहना है कि चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, सारा श्रेय सरकार अपनी तरफ लेती है, चाहे वो G20 हो जो एक रोटेशनल प्रेसिडेंसी है, सरकार अपनी तरफ लेती है, और साइंटिस्ट अगर चांद पर चंद्रयान का मिशन सक्सेसफुल करते हैं, उसका श्रेय भी सरकार अपनी तरफ लेती है। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा, एक राजनीतिक दल देश में ऐसा रहा जिसके 4 पीढ़ियां फायदा उठाती रही। उनके लिए परिवार फर्स्ट है, हमारे लिए देश फर्स्ट है, इंडिया फर्स्ट। चंद्रयान 1 पे जवाहर पॉइंट नाम क्यों रखा गया था? किस राजनीतिक दल ने रखा? उनका योगदान क्या था उसमें? अटल जी ने शुरू किया था जी मिशन। चंद्रयान 2 के लिए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सरकार में पैसा भी नहीं दिया गया कि चंद्रयान 2 पूरा भी किया जा सके। बजट में कटौती कर दी गई थी। आज देश को सच्चाई जाननी चाहिए कि चंद्रयान 1 अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। चंद्रयान 2 जो यूपीए के समय करना था, इन्होंने पैसा भी नहीं दिया, मोदी जी ने आके उसको किया। और चंद्रयान 3 की सफलता से पहले भी अपने वैज्ञानिकों का मनोबल भी बढ़ाया। जब 2 में कुछ कमियां रह गई तब भी मनोबल बढ़ाया, उम्मीद बढ़ाई। खिलाड़ी हो, वैज्ञानिक हो, मोदी जी मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, साथ देते हैं, गले लगाकर उनको कहते हैं अगली बार और अच्छा करेंगे। दूसरों पर ठीकरा नहीं फोड़ते हैं। इनके 40 साल पुराने प्रोजेक्ट हमने अब आके पूरे किए, और जो अपने नींव पत्थर रखे थे वो तो हमने पूरे कर ही दिए। नाविका जी, यही अंतर है इस सरकार में। इनके लिए परिवार फर्स्ट था, हमारे लिए देश फर्स्ट। हमने शिव शक्ति नाम दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का नाम है? क्या आपत्ति है इस पे? आपका हिंदू ये वो लोग हैं, हिंदुत्व एजेंडा है, ये भी आप पर आरोप देखिए, है। मैं आपसे एक बात करता हूं। अभी एक राज्य के एक खेल मंत्री ने इतना घटिया बयान दिया है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है जी। क्या इस घमंडिया गठबंधन के एक भी नेता ने उस नेता के खिलाफ कोई बात कही? सनातन धर्म के बारे में वो कह सकते हैं? ये हिंदू विरोधी घमंडिया गठबंधन के लोग हैं। जब रामनवमी की जुलूस निकलता है तो पश्चिम बंगाल में पथराव, आगजनी, गोलाबारी की जाती है और एक घमंडिया गठबंधन के लोग चुप रहते हैं। रामायण पर अपशब्द कहे जाते हैं सपा जेडीयू के लोगों के द्वारा या फिर आरजेडी के लोगों के द्वारा, घमंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा। ये उस पर चुप रहते हैं। इनको लगता है कि ध्रुवीकरण हो जाए, एक वर्ग का वोट हमें मिल जाए, हिंदू तो अपनी जातियों में बंटकर रह जाएगा। मैं इनको कहना चाहता हूं, ये सोच, ये जो अंग्रेजों बांटो और राज करो वाली थी, ये इस घमंडिया गठबंधन के लोगों की भी है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो एनडीए के पूरे गठ को साथ में लेकर चले हैं और देश के 140 करोड़ परिवारजनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हमारा भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। आज भारत खेलों में, देखिए, यूनिवर्सिटी गेम्स में 10 मेडल नहीं आते थे, 18 मेडल आए 60 साल में। हमने इस पर 26 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड हैं। लेकिन विपक्ष का कहना आप घबराए हुए हैं, इसलिए आप बार बार इंडिया अलायंस को घमंडिया अलायंस कहते हैं। और तीसरी मीटिंग जब हुई मुंबई में इस अलायंस की,
तो आपने एक स्पेशल पार्लियामेंट के सत्र का अनाउंसमेंट किया जिसका एजेंडा किसी को पता नहीं, और एक वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये आपने शुरू किया है विचार विमर्श, और एक कमेटी भी बनाई है इस पर। ये सब आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट के विशेष चिन्ह दिख रहे हैं। देखिए, एक सत्र क्या बुला लिया, एक भय पैदा हो गया घमंडिया गठबंधन में। वो इस डर के चक्कर में अपना अब तक संयोजक नहीं नियुक्त कर पाए 3 मीटिंगों में। ना जाने कितने करोड़ों का बिल इनका आने जाने का और 5 स्टार होटलों में खाना खाने का है। ये अब भी खाना ही खा रहे हैं 5 स्टार होटल में, 2024 के बाद भी अलग अलग खाना खाएंगे 5 स्टार में ही। इतना ही फर्क है। संयोजक तक नहीं चुन पाते हैं, अपनी डफली अपना राग। इनका ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। आप देखिए, कांग्रेस एक आदमी का नाम लेती है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का नाम लेती है, तृणमूल कांग्रेस ममता जी का नाम लेती है, उद्धव जी की पार्टी कौन सी मुझे पता नहीं, लेकिन उद्धव जी का नाम भी वो लेते हैं। और कौन है जो छूटा है? नीतीश जी वाले कहते हैं जेडीयू वाले वो बने। अब आप देखिए, इनमें क्या एक स्वर में बात नहीं कर पाते हैं, एक सरकार क्या चलाएंगे। देश स्थिरता की ओर आगे बढ़ा है और 9 साल की स्थिरता ने देश को समृद्ध, संपन्न, सशक्त बनाया है। एक नई ताकत के रूप में भारत को उभारा है। एक मजबूत नेता के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है। क्वाड की मीटिंग हो, G7 की मीटिंग हो, G20 की मीटिंग हो, ब्रिक्स की मीटिंग हो, हर तरफ भारत एक नई उम्मीद लेकर आता है। वर्ल्ड सी होप इन इंडिया, दे सी होप इन द इंडियाज लीडरशिप। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी केवल आज भारत के नहीं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और ये डर इनको सताता है, जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं, ये नरेंद्र मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 140 करोड़ परिवारजनों का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और वो सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ चले। नाविका जी, हमारे एक प्रोग्राम में मैं आपके सामने रखता हूं, 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बना कर दिए, 4 करोड़ बहनें लखपति बनी। 70 साल में नहीं बनी थी, मोदी जी ने बनाई। 12 करोड़ शौचालय बनाकर इज्जत कर बहनों को दिया, ये इनमें से कोई नहीं कर पाया था। 13 करोड़ नल से जल देने का काम परिवारों को किया, हर घर तक बिजली पहुंचाई। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज 2.5 साल तक दिया। 220 करोड़ वैक्सीन लगाई, जिसको ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। ये क्षमता नरेंद्र मोदी जी की सरकार की है, जो गरीबों को मजबूत बना रही है और गरीबी रेखा से बाहर निकाल रही है। 18.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, ये आज तक नहीं हुआ था। दुनिया भी मानती है कि गरीबी रेखा से बाहर भारत ने निकाला, मोदी सरकार ने निकाला। 45 करोड़ बैंक खाते खुलाए। ये कहां संभवता है? डिजिटल पेमेंट्स, नाविका जी मजाक उड़ाते थे चिदम्बरम जी, कहां 8.5 रुपए की पेमेंट होगी, कहां इंटरनेट कनेक्शन आएगा? अरे चिदम्बरम जी, इसी देश में 9 साल में जो आपके बचे हुए प्रोजेक्ट थे वो मोदी सरकार ने पूरे करवाए। डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर 1 देश भारत है, 46% पेमेंट के साथ। 14 लाख करोड़ की पेमेंट्स भारत एक साल में करता है। गरीब से गरीब व्यक्ति स्वनिधि योजना के माध्यम से रेडी फड़ी वाला, चाय वाला भी अपने मोबाइल फोन से पेमेंट करता है और लेता है। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है जी। डिजिटल पेमेंट, डिजिटल करेंसी भारत की एक बड़ी ताकत बनी है। आज 26 देश उसके साथ जुड़े हैं। और नाविका जी देखिए, हमारा सॉफ्ट पावर क्या है, हमारा आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, G20 के माध्यम से हमने और मजबूत किया, ट्रेडिशंस को, कला, संस्कृति, हमारी परंपराओं को बढ़ाकर दिखाया। क्या ये ताकत नहीं है? ये कब था? ये हमारे पास सदा था, योग भी। लेकिन इंदिरा जी योग करती थी, लेकिन दुनिया को बताने नहीं गई। आज मोदी जी ने पूरी दुनिया भर के देशों को योग के साथ जोड़ा। आज G20 को 1 वर्ल्ड 1 फैमिली 1 फ्यूचर के साथ एक दुनिया के सामने एक ऐसा संकल्प लिया है कि वासुदेव कुटुंबकम। लेकिन विपक्ष का कहना है, विपक्ष का ये कहना है कि जब इंडिया गठबंधन बना, मुंबई की उनकी मीटिंग आ रही थी, तब आपको याद आया कि महंगाई ज्यादा है और आपने सिलेंडर के प्राइस 200 रुपए कम किए। उनका ये कहना है कि आपने इंडिया अलायंस बनने के बाद और उनकी मीटिंग से पहले ये 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए कमेटी बनाई। और इस कमेटी की अगर मैं बात करूं तो अधीर रंजन चौधरी जी को इस कमेटी पे रखा
गया है, उन्होंने पत्र लिखकर कह दिया है कि मुझे नहीं रहना इस कमेटी में, क्या होगा इस कमेटी में मुझे मालूम है। और चिदम्बरम जी का कहना है कि ये इट्स अ फसाड, आपने एक नाम के लिए एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन रखा है, लेकिन राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्हें नहीं रखा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की वहां पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं आपका धन्यवाद दूं, आपने प्रश्न उठाया और देश की जनता को भी जवाब देना चाहता हूं। दुनिया भर के देशों में कोविड के समय महंगाई 3 गुना से 4 गुना बढ़ी। जब हम सत्ता में आए थे तब कोविड नहीं था, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय रसोई गैस का सिलेंडर 1241 रुपये का था, आज 900 रुपये में दे रहे हैं और उज्ज्वला लाभार्थियों को 700 रुपये में दे रहे हैं। एक तो ये, दूसरा इनके समय कुल मिलाकर 14.5 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर मिले, जिसमें 10 साल गैर कांग्रेसी सरकारें भी थी। मोदी जी ने 18.5 करोड़ नए गैस कनेक्शन इन 9 सालों में मोदी सरकार के समय गए, यानी कि बहनों को धुआं मुक्त रसोई मिली। पहली बात ये। दूसरा, 9.5 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में मुफ्त में कनेक्शन, सिलेंडर और एलपीजी और चूल्हा सब कुछ मिला। इसमें तो कोई, इसमें इनका क्या विरोध है? वो कहते हैं रिफिल के पैसे नहीं। देखिए, कोविड का समय आया, हमने 3 रिफिल मुफ्त में दिए कि नहीं दिए? हमने 20 करोड़ बहनों के खाते में 31,000 करोड़ रुपए मदद के रूप में अलग से दिया नाविका जी। 80 करोड़ परिवारों को 4 लाख करोड़ का अनाज बिल्कुल मुफ्त में 2.5 साल तक दिया। 220 करोड़ वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगाई, मोदी सरकार ने लगाई, और लगाई भी और देश की अर्थव्यवस्था को साथ ही साथ आगे बढ़ाने का काम किया। 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, हमने 5वें नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अंग्रेजों को पछाड़कर बनाया, जिसने हमारे पर 200 साल राज किया। एक बात मैं यहां पर और कर, किसानों के लिए खरीद भी दुगनी की फसल की और दाम भी 80% ज्यादा बढ़ाए 9 सालों में। एक और उदाहरण, 303% दाम, 300% दाम, यानी कि 3 गुना ज्यादा दाम खाद के बढ़ गए दुनिया भर में। हमने 1 रुपया भी दाम खाद का नहीं बढ़ने दिया देश के किसानों के ऊपर, मोदी सरकार ने मदद की। उल्टा साथ में 2,40,000 करोड़ रुपए अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनके खाते में डाला। ये कांग्रेस जीवन में सोच नहीं सकती थी जी, जो हमने इन 9 सालों में किया है। नाविका जी आंकड़े कहते हैं, और ये मैं तो झूठ नहीं बोल सकता, आदेश देखेगा। और मैं चाहता हूं कांग्रेस के एक भी नेता में हिम्मत है तो किसी बात पे मुझे चुनौती देकर दिखाए, कोई भी कांग्रेस का नेता हो। 74 एयरपोर्ट थे आजादी से पहले से लेकर 2014 तक, हमने 75 नए बना दिए 9 साल में। 600 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 700 नए बना दिए 9 साल में। 7 IIT 7 IIM थे, हमने 16 और 14 कर दिए। एम्स केवल 7 थे, हमने 15 नए बना दिए मेडिकल कॉलेज। 3 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी 2014 तक, हमने 7,20,000 किलोमीटर बना दी। आधा किलोमीटर मेट्रो नहीं बनती थी, हम 1.5 किलोमीटर प्रतिदिन बनाते हैं। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया और तीसरा हम इस साल बन जाएंगे। नाविका जी, मैं आपको आंकड़े इतने दे सकता हूं कि भारत कैसे आगे बढ़ा। इनकी भ्रष्ट सरकारें थी, हमारी ईमानदार सरकार है, एक भी भ्रष्टाचार का ना आरोप है और हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। लेकिन सारे भ्रष्टाचारी आपके साथ जब अलायंस में आते हैं तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। ऐसा नहीं है नाविका जी, ऐसा नहीं है। देखिए, जांच एजेंसियां अपना काम करती है, किसी ने भ्रष्टाचार किया होगा उसको जेल में भी डाला जाएगा। ऐसे तो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी या बाकी इनके नेता हो बेल पर हैं जी, लालू जी से लेके सारे। भ्रष्टाचार के मामलों में चारा घोटाला से लेके ना जाने क्या क्या खा गए, नेशनल हेराल्ड से ना जाने क्या क्या कितने घोटाले इनके हैं। और ये किस मुंह से देश के सामने वोट मांगने जाएंगे? नहीं, पर आप जो अन्य लीडर दूसरी पार्टियों से अपने साथ लाते हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप आप ही की सरकार के समय में हुए हैं। मैं आपको कह रहा हूं ना नाविका जी,
जो जांच एजेंसियां स्वतंत्र थे अपना काम करे, अगर हमारे भी किसी इलाके के खिलाफ कुछ गलत होगा उसके खिलाफ The charge on you is that you arm twist through your agencies and then force people to join your bandwagon. हमें जरूरत ही नहीं है जी, हमें जनता का बहुत आशीर्वाद है। मोदी जी को पूर्ण बहुमत 2014 में मिला, 2019 में मिला। हमने उसके बावजूद एनडीए के गठबंधन के सभी दलों को साथ में लेके चले, सत्ता का भागीदार बनाया, सेवा करने में लगाया और 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार 140 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी की बनेगी। और मोदी जी जिन्होंने कहा मैं तीसरी बार आऊंगा, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पहले 3 साल में ही भारत को बनाकर दिखाऊंगा। मैंने आपसे सवाल ये भी पूछा था वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी बनी है, अधीर रंजन चौधरी ने मना कर दिया, वो बैठेंगे मैं नहीं। स्वागत करता हूं इस कमेटी बनने का, हम तो पहले दिन से कहते हैं जी। तो पहले चर्चा होनी चाहिए या अपॉइंटमेंट कर देनी चाहिए और चर्चा उसके बाद शुरू होगी? नाविका जी कमेटी बनाओगे तभी तो चर्चा होगी। ऑपोजिशन चर्चा किससे करें? कमेटी चर्चा करती है जी, चैनल पे बैठ के चर्चा नहीं होती कि वन नेशन वन इलेक्शन कैसे होगा। वो आपका अधिकार है। सरकार कमेटी गठित करती है, पूर्व राष्ट्रपति जी को उसका चेयरपर्सन बनाया गया, कितनी गंभीरता है। गृह मंत्री उसका हिस्सा बने, अलग अलग लोग जो अलग अलग क्षेत्र के हैं, हरीश साल्वे बहुत बड़े लॉयर हैं, कांग्रेस के नेता जो हमारे लोकसभा के हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस के पास इतनी सीटें भी नहीं कि उनका विपक्ष का नेता बन सके, लेकिन हमने फिर भी व्हाई नॉट मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए लोकसभा के नेता को ही अगर आप बाकी कमेटीज भी देखेंगे उनको रखा जाता है और सरकार ने बड़ा मन करके उनको रखा है। अब उसका वो हिस्सा क्यों नहीं बन रहे? क्या कांग्रेस को उनकी क्षमता नजर नहीं आती कि कांग्रेस अब बांटने चल पड़ी है कि खड़गे जी? नहीं तो बंगाल के खिलाफ क्यों कांग्रेस नजर आती है? एक ही तो उनके सांसद वहां से हैं, वहां ममता जी नहीं आने देती, या सोनिया जी ने कमेटी में आने दे रही। ऐसा क्यों है? क्यों अधीर रंजन चौधरी जी को बोलने भी नहीं दिया गया जब अविश्वास प्रस्ताव था? ये भी भारतीय जनता पार्टी को, गृह मंत्री जी को बोलना पड़ा, स्पीकर महोदय को कि हमारे समय में से समय दे दीजिए। अधीर रंजन चौधरी जी बंगाल से आते हैं, उसके खिलाफ क्यों है? क्या उनको बंगाल में कुछ नहीं दिखता? सब कुछ ममता जी को दे दिया है। तो अगर अलायंस में उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है, उससे बीजेपी को क्या दिक्कत है? देखिए अलायंस का कोई नेता कौन है जी? मैं आपसे सवाल करता हूं, देश जानना चाहता कौन है इनका नेता? घमंडिया गठबंधन का कौन नेता है? आप बताइए ना जी। 3 मीटिंग हो गई, कहते हैं कितने 5 स्टार होटल के, कितने चार्टर्ड फ्लाइट इनकी होगी, करोड़ों रुपए फूक दिए। नेता कौन है? ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। आप भी कई राज्यों के चुनाव में जाते हैं, वहां पर नेता पहले से नहीं तय करते। अगर वो फॉर्मूला विपक्ष अडॉप्ट करता है तो उसमें क्या दिक्कत है? उनका अधिकार है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, कांग्रेस समाजवादी पार्टी इकट्ठे लड़े, अखिलेश यादव जी ने नेता चुना। राजस्थान में आपका कौन नेता है? मेरा नहीं, देखिए राज्य के चुनाव की जब समय आएगा हम लोग करेंगे। मैं कह रहा हूं एक गठबंधन बना, मोदी वर्सेस हु। अब आम आदमी पार्टी कहती है अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस कहती राहुल गांधी, कोई कहता है खड़गे, कोई कहता है उद्धव ठाकरे जी, कोई कहता है नीतीश कुमार जी, कोई कहता है ममता बनर्जी जी। आप मुझे बताइए जनता किसको लेके चले? मैं सवाल ये केवल इसलिए इकट्ठे हैं कि हिंदू को गाली निकालो और एक तरफ करके चलो, या फिर अपने जो बुरे काम किए हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसको छिपा के चलो? ऐसा कैसे होता है नाविका जी? क्या देश जानना नहीं चाहता कि देश की बागडोर किसके हाथ में होगी? आज स्थिर सरकार है, भारत की ताकत बढ़ी है, भारत के नेता में दुनिया उम्मीद देखती है। दे सी अ रे ऑफ होप इन इंडिया, द वर्ल्ड सी होप इन मोदी, द वर्ल्ड सी होप इन इंडिया, एंड वी हैव टू लिव अप टू दोस एक्सपेक्टेशंस। आज भारत के पास वो समय आया है कि ये जो आधार नरेंद्र मोदी जी ने जो नींव रखी है नए भारत की, आज इसमें एक ऐसा बुलंद भारत खड़ा करें। और ये बुलंद भारत की तस्वीर है कि खेल मैदान में भी तिरंगा, तो चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा पर भी तिरंगा, शिव शक्ति पॉइंट पर। अनुराग ठाकुर जी, G20 के होस्ट हैं हम, प्रेसिडेंसी है, लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है कि शायद चीन के राष्ट्रपति नहीं आएंगे, पुतिन जी रशिया से नहीं आएंगे। व्हाट डू यू थिंक विल दिस इम्पैक्ट द टेकअवेज फ्रॉम द G20 समिट? देखिए G20 बहुत सारे देशों की भागीदारी है, ग्लोबल गुड के लिए इसका एजेंडा है, और भारत ने जिस स्तर पे G20 का आयोजन किया ना दुनिया का कोई देश कर पाया है,
और ना ही दुनिया का कोई देश स्तर पे कर पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की व्यक्तिगत रुचि लेके एक एक चीज पर ध्यान देना, और इसमें करोड़ों भारतीयों की भागीदारी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सभी राज्यों, यूनियन टेरिटरीज के 60 शहरों में 200 से ज़्यादा बैठकों में 3000 से ज़्यादा विदेशी प्रतिनिधियों का आना, इतना सफल कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराओं को दुनिया को अवगत कराना भारत की, फिर भारत की डिजिटल पेमेंट, डिजिटल करेंसी हो, या हमारी वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, वुमेन लेड एम्पावरमेंट की बात हो, वो दुनिया देख के एक तरह से हैरान भी होती है, आश्चर्यचकित भी होती है, तो नई उम्मीद भी भारत में देखती है। वी डोंट टॉक अबाउट इट, वी डिलीवर। देखिए, सब सेल्फ हेल्प ग्रुप 9 करोड़ महिलाएं, सबसे ज़्यादा पायलट भारत में, फोर्सेस में भारत की महिलाएं, हमारे वैज्ञानिकों में भारत की महिलाएं, कॉर्पोरेट जगत में भारत में महिलाएं, और मेरा इंटरव्यू लेने वाली मैनेजिंग एडिटर भी हमारे टाइम्स नाउ ना भारत की और टाइम्स नाउ ग्रुप की महिला। तो अपने आप में देख, अरे भारत की राष्ट्रपति देखिए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, क्या जीवन रहा जी उनका, क्या उपलब्धियों भरा जीवन रहा। ये भारत की नई ताकत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और बाकी क्षेत्रों में जो हमने किया है, वी हैव इमर्ज एज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, और एक ग्लोबल साउथ की आवाज बनना भारत के लिए बड़ी बात है। आज दुनिया भारत में एक उम्मीद देखती है। हमने एक बार नहीं, अनेक पटलों पर, अनेक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल साउथ की बात को रखा है। देखिए, फर्स्ट रिस्पॉन्डर आज कौन बनता है मदद के लिए? नेपाल में भारत गया, अर्थक्वेक आया, टर्की सीरिया में भारत गया, ऑपरेशन गंगा चलाकर यूक्रेन से निकालने में भारत सबसे आगे गया, अफगानिस्तान में भारत ने सबसे आगे किया। और यही नहीं, क्वाड की मीटिंग हो, G7 की मीटिंग हो, G20 की मीटिंग हो, ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के एक्सपेंशन हो, हर जगह भारत का महत्वपूर्ण रोल। और ये मैं नहीं कहता जी, विश्व के नेता आज कहते हैं। जब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मोदी इज द बॉस, इटालियन प्राइम मिनिस्टर कहती है मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड, रशिया के राष्ट्रपति कहते हैं मोदी इज ट्रू पैट्रियट, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो पहली बार ऐसा हुआ कि 3 दिन अमेरिका के राष्ट्रपति स्वयं मौजूद रहे हों। ये छोटी बातें नहीं हैं। आपका तो इतना लंबा जीवन आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में गया। आप मुझे एक उदाहरण बताइए जब भारत के किसी एक नेता ने भारत को इतना सम्मान दिलाने का काम किया। You're right, stature of India has grown, but then Rahul Gandhi raises questions on China. क्या भारत ने चाइना को अपना कुछ लैंड सीड कर दिया है? वो लद्दाख गए थे, लद्दाख में उन्होंने मोटरसाइकिल पर वहां पर घूमा, लोगों से बात की, और उन्होंने कहा, लोग बता रहे हैं कि पहले जो एरियाज हमारे होते थे वो अब हमारे नहीं हैं, वो चीन में चले गए हैं। इस पर सरकार की क्या पुष्टि? विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को जो कांग्रेस ने दिया था, जो जख्म दिए हैं, 40,000 लोगों की हत्या वहां पर हुई। ये राहुल गांधी जी के ही परिवार और पार्टी के और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया जख्म, वो हमने ख़त्म किया 370-35 से हटा के। तब जाके नेहरू गांधी परिवार अब वापस जम्मू कश्मीर की ओर देखने लगा, वहाँ पे बर्फ़ में जाके खेलने लगा, छुट्टियाँ मनाने लगे, लद्दाख में बाइक चलाने लगे। 10 साल इनकी सरकार रही, 10 साल अब हमारी सरकार को होने वाले हैं। ये विदेशों में छुट्टियां मनाने जाते थे, धन्यवाद ही होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने धारा 370-35 हटा के पथराव भी बंद कराया, गोलीबारी भी बंद कराई, आतंकवादी घटनाओं में कमी लाए, और जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर, अमन शांति की राह पर लेकर गए। लेकिन ये जो सवाल का जवाब नहीं, ये जो लैंड हमारा चीन ने लिया है, हाँ या ना, ये विपक्ष को जानने का हक है, देश को जानने का हक है। देखिए, जब पंडित नेहरू जी की सरकार थी, हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, उस समय 39,000 स्क्वायर किलोमीटर एक्साई चीन से लेके बाकी इलाका भारत का चीन ने कब्जा किया हुआ है। राहुल गांधी जी ठीक कहते हैं, लेकिन उन पंडित नेहरू के समय किया है। नए भारत में ये बुलंद भारत की तस्वीर है कि अगर कोई इधर घुसता है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक घुसकर करते हैं, अगर कोई डोकलाम पर आता है तो मुंह तोड़ जवाब वहां पर देते हैं। और श्रीमान राहुल गांधी जी, डोकलाम की घटना के समय आप चीन के अधिकारियों के साथ चाय नाश्ता कर रहे थे। राजीव गांधी फाउंडेशन
उनसे पैसा लेके अपने काम चला रही थी। आपको जवाब देना चाहिए क्यों लिया आपने चीन से पैसा। आज तक उस हमने एक ही- इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं आई है। मैं कहता हूं कांग्रेस क्यों नहीं जवाब देती है। ओलंपिक्स की आड़ में उस समय क्या खेल हो रहा था, किन कागजों पर साइन करके आई थी कांग्रेस पार्टी चीन में। पूरा परिवार चले गया था इनका, पूरी पार्टी वहां पर थी। क्या हस्ताक्षर किए गए थे। हमारे यहां तो खुली तस्वीर है, ना 1 इंच भूमि कोई ले पाया है, ना 1 इंच भूमि भारत की कोई ले पाएगा। हमारे सैनिक इतने मजबूत हैं, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम की घटना में भी दिया, अन्य घटनाओं के समय भी दिया, क्योंकि देश की सरकार पीछे खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। मैं एक सवाल जम्मू कश्मीर पे और पूछना चाहती हूँ। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, आर्टिकल 370 के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। एक एफिडेविट रूट्स इन कश्मीर ने फाइल किया है जिसमें अकबर लोन की बात उठाई गई है। अकबर लोन जो वहाँ की असेंबली में एंटी इंडिया पोजीशन और प्रो पाक पोजीशन ले चुके हैं। उन अकबर लोन के लॉयर हैं कपिल सिब्बल, जिस पर इस एफिडेविट में ऑब्जेक्शन रेज किया है। इस मुद्दे पर आपका क्या रुख है? मैट्री सब जुडिस, मुझे लगता है उसको वहीं रहने दे। लेकिन कौन लोग किसके साथ खड़े हैं, चेहरा बहुत जल्दी ही बेनकाब हो जाता है। और उन लोगों की सोच क्या है जम्मू कश्मीर को लेके, और वो किस स्थिति में जम्मू कश्मीर को देखना चाहते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए। ये देश ने पहले भी देखा है, आज भी देख रहा है। लेकिन देश ने एक तो साफ देख लिया नाविका जी कि 370-35 से जाने के बाद अमन शांति बहाल हुई, विकास हुआ, पर्यटकों की भीड़ बढ़ी, इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई। आखिरकार मेरे जम्मू कश्मीर से ये सुख चैन कौन छीनना चाहता है? कौन लोग हैं वो जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए जम्मू कश्मीर की कई पीढ़ियों को इस अंधकार में ढकेल दिया, जिनके कारण कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। But Mr. Kapil Sibal, being their lawyer, do you see that as a lawyer's right to represent? अगर आप इनके इतिहास में जाएंगे तो आप बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, किस किस केस में किन किन के साथ कौन कौन खड़े थे। वो अपने आप में ही उनका चेहरा चरित्र सब दिखा देता है। और आज वो इंडिया अलायंस के भी मेंबर है। मैं कहता हूँ जी, जो सनातनियों को गाली निकाले, जो रामनवमी के जुलूस पे पत्थर और बम बंदूक के हाथ करे, जो रामायण पर और माँ सीता पर अपशब्द कहें, वो सारे इसी घमंडिया गठबंधन के लोग हैं। ये देश के लोगों जान लीजिए, ये घमंडिया गठबंधन के लोग सनातनी पर भी हमला करते हैं, मारने की बात करते हैं, माँ सीता पर, रामायण पर भी यही कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, और रामनवमी के जुलूस पर भी बम गोली बंदूक से हमले करते हैं। और अब आतंकवादियों की भी पैरवी करने के लिए ऐसे लोग खड़े होते हैं, उस सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। आप इन सब के चेहरे दिखाओगे तो देश की जनता भली भांति जानती है कौन किस चीज़ के लिए जाना जाता है। अनुराग ठाकुर जी, बीबीसी की एक रिपोर्ट पर जम्मू और कश्मीर की सरकार की पुलिस ने ऑब्जेक्शन रेज की है, वेयर बीबीसी हैज कॉल्ड सर्टेन एरियाज इन पीओके एंड इवन इन कश्मीर एज इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। बीबीसी के साथ रन-इन्स इस देश में होते रहे हैं पिछले कुछ महीनों में। व्हाट इज योर पोजीशन on the statement, the expression, and the Jammu and Kashmir police objecting to it, also saying they will take legal recourse? लीगल रिकोर्स लेना ही चाहिए किसी भी सरकार को। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कुछ लोग अपनी ऐसी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, मिसचीवियस रिपोर्टिंग को लेके, और जानबूझकर कुछ ऐसी बातों को लिखना जो भारत के खिलाफ हो, भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ और सच्चाई से परे हो, और जो स्थानीय नियमों के अनुसार अगर अपना कामकाज ना करता हो, और उनके लिए ये विपक्ष के घमंडिया गठबंधन के लोग आकर बीबीसी की पैरवी पे लग जाते हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, क्या इनमें से कोई भी अब बोलता है उनके खिलाफ? क्या वो भी मानते हैं बीबीसी की तरह कि ये इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है क्या? मेरा सवाल है घमंडिया गठबंधन के लोगों से, कौन आके बोला है? ये राजनीति में इतना नीचे गिरते हैं
कि ये देश विरोधी बात करने वालों के साथ भी खड़े हो जाते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि देश से बाहर जाकर देश के खिलाफ राहुल गांधी जी और अन्य नेता बोलते हैं और ऐसे लोगों का साथ लेते हैं। लेकिन देश की जनता जानती है कि देश के हित, देश के अंदर और बाहर नरेंद्र मोदी जी सदा रखते रहे, आगे भी रखेंगे। और जहां तक बीबीसी की बात है, इनके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई जिसको भी कानून के तहत करनी होगी वो करेंगे। ये हो या कोई भी और हो, भारत के हित सबसे पहले, देश के हित सबसे पहले। किसी को यह अधिकार नहीं है कि देश के खिलाफ कोई एजेंडा चलाए, और कम से कम उनको नहीं जिनका एजेंडा ही कभी भारत के खिलाफ रहा हो। सवाल विपक्ष का आपकी सरकार पर यह भी है कि आप करप्शन की बात करते हैं, लेकिन आप एक ही बिजनेस ग्रुप को प्रमोट करते हैं। और एक नई रिपोर्ट जो आई है अडानी मामले पर, उस पर भी सरकार को घेरा है विपक्ष ने। इस पर आपका क्या जवाब? नाविका जी, छत्तीसगढ़ में सारे कानून नियम ताक पे रख के इसी कांग्रेस की सरकार ने इनको प्रोजेक्ट दिए। राजस्थान ने, मैं कहता हूं जी ये करें ना इनके राज्यों से बाहर, क्यों नहीं करते? राजनीति करने के लिए आप कुछ भी करिए, अपने राज्य से तो शुरू करिए। नरेंद्र मोदी जी ने, देखिए जो नियम पॉलिसीज बनती हैं, आज हमारे स्टार्टअप्स कहाँ हैं? इनके समय कहीं खड़े नहीं थे। भारत के युवाओं की ताकत देखिए, मात्र 5-7 साल में दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बना दिया। 107 यूनिकॉर्न्स आज भारत में है। ये युवाओं की ताकत है। हमने स्पेस सेक्टर खोला, आज हम स्पेस में देखिए कहाँ है, 1-1.5 साल के अंदर कहाँ है। प्राइवेट सेक्टर में भी रॉकेट और सैटेलाइट छोड़े गए। 104 सैटेलाइट्स एक साथ छोड़ने का काम भारत ने किया। वी आर द मोस्ट इफेक्टिव। एंड लुक एट द अदर एरियाज। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, हम तो 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर थे जी, 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद हमने सोलर पावर को कहाँ पे लेके चले गए। हमने ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन जॉब, ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ग्रीन इकोनॉमी, इस दिशा में आगे बढ़े। ये लोग अपनी राजनीति करेंगे ऐसे विषयों को उठाकर। हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने का दायित्व हमारे ऊपर है। तभी जाकर 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर से 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हम दुनिया के मोबाइल के बने। और ट्वाइस में हमारा रिकॉर्ड एक्सपोर्ट है। आप देखिए डिफेंस में 1000 आइटम्स हमने इंपोर्ट करनी बंद कर दी। आज हमारा 1 लाख करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग हुई एक साल में, 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। आज क्या है जो भारत में नहीं बन रहा? और एक क्षमता भारत को बढ़ानी, ये वही लोग हैं जो हमारे ऊपर हंसते थे कि क्या है आत्मनिर्भर भारत। फिर हमने वैक्सीन अपनी बनाई तो कहते भारत की वैक्सीन पे क्यों विश्वास करते हो? इनके सारे रहते तो भारत में न जाने कितने करोड़ लोग मर जाते। इनको छोड़ दीजिए जी, इनको कोई नहीं सुनता है और देश आगे बढ़ रहा है। आप एक बात मान के चलिए, अर्थव्यवस्था की बात हो, क्षमता बढ़ाने की बात हो, जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो चंद्रयान मिशन के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे शिव शक्ति पॉइंट पे विक्रम लैंडर की लैंडिंग ने बहुत कुछ करके दिखा दिया है। तो ये जो पार्लियामेंट का जो सत्र बुलाया गया 18 तारीख को, इससे बहुत से स्पेकुलेशन भी शुरू कर दिया है। विल यू ब्रिंग इन अ बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर 1 नेशन 1 इलेक्शन? या बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या आप चुनाव एडवांस करने वाले हैं? क्या है रणनीति? आखिरकार एक संसद सत्र बुलाने का अधिकार तो सरकार को है, बुलाया है। बहुत बड़ा आयोजन G20 का भी हम लोग कर रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ है। देखिए सरकार ने 1500 से ज़्यादा कानून वो खारिज किए, वो ख़त्म किए जो अंग्रेज़ों के समय के बने थे। आज उसका कोई ऐसे सैकड़ों और कानून बनाए जो देश की जनता के हित में थे। ऐसे नई नीति पॉलिसीज़ बनाई जिससे लोगों को लाभ मिला, जिससे गरीब कल्याण के कार्यक्रम शुरू हुए। 18.5 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए, भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी मिली। आखिरकार ये अधिकार तो सरकार को है कि नए कानून, नियम और सत्र बुला के चर्चा करे। अरे ये लोग तो चर्चा से भागते हैं नाविका जी। हमारा संसद सत्र शुरू होता है, 2-2 हफ्ते बर्बाद कर देते हैं, देश के पैसे लेते हैं सारे, रोज के आते नहीं, चर्चा नहीं करेंगे।
लेकिन हम तो सत्र बुला रहे, चर्चा कीजिए। किस चीज पर? चीन पर, महंगाई किसी पर? नहीं किया। महंगाई पर कर लीजिए ना। हम तो आज भी कहते हैं दुनिया में 3 गुना ज्यादा महंगाई बढ़ी। भारत में मोदी सरकार के अच्छे कदमों के कारण महंगाई पर नियंत्रण रखा गया। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यूएस ऐसी जगह जहां पे इन्फ्लेशन होती नहीं थी 40-40 साल तक, वहां पे कितनी महंगाई है। यूरोप देखिए, बाकी देश देखिए, भारत की उस दिशा में बहुत अच्छे कदम उठाए। दूसरा एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, ये जो महंगाई की आप बात करते हो, हमने तो पेट्रोल डीजल के ऊपर ड्यूटीज कम कर दी, केंद्र सरकार ने दाम कम किए, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों ने अपना वैट बढ़ा दिया। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जी, और कांग्रेस के केंद्रीय नेता जवाब नहीं दे पाए जब पूछा, कहते राज्य का विषय है। अरे भाई, राजस्थान में देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है, श्रीगंगानगर में। कांग्रेस जवाब देगी क्यों? इनके कर्नाटक में देखिए, इनके बाकी राज्यों में देखिए, हिमाचल में देखिए, 2 बार दाम बढ़ा दिए। नाविका जी, ये लोग बाहर कुछ और कहते हैं, अंदर खाते देश की जनता पर महंगाई का भार ये अपने राज्यों में डाल रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, जब G20 का समिट यहां चल रहा होगा, खबरें ये भी हैं कि राहुल गांधी विदेश में होंगे, यूरोप में होंगे, और जब वो जाया करते हैं तो आप ही की पार्टी कहती है कि वो देश के बाहर भारत के बारे में गलत बयानबाजी करते हैं। दिस टाइम अराउंड व्हाट डू यू थिंक इज हिज एजेंडा एंड व्हाट विल बी योर रिएक्शन टू दैट? देखिए, उनका एजेंडा उनको मुबारक, उनकी छुट्टियां उनको मुबारक, छुट्टी मुबारक। वो लोगों से मिलने जा रहे हैं, मीटिंग्स करने, व्हाई डू यू कॉल इट छुट्टी? भाई देखिए, देश चुनाव की ओर आगे बढ़ रहा है, देश में संसद सत्र आ रहा है, और संसद सत्र में भी वो कितने नजर आते हैं आपने देखा ही है। जो वो खुद गंभीर नहीं तो हम उनको इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? नाविका जी, आप ही की पार्टी उसे बहुत गंभीरता से लेती है। नहीं, आप किसी भी अन्य विपक्षी नेता को इतना नहीं याद करते जितना राहुल गांधी को याद करते। देखिए, अगर देश के बारे में कोई अनाप शनाप बयानबाजी करेगा, देश को अपमानित करने के लिए विदेशी धरती और विदेशी एजेंसियों का सहारा लेगा, दर्द तो हर हिंदुस्तानी को होता है। अगर आपको भी लगता है कि भारत के बारे में कोई झूठ अपशब्द कहे, भारत की छवि को खराब करने का काम करे, तो हर भारतीय को दर्द होता है, जिसको भारत से प्यार है। हमें भी होता है। अनुराग ठाकुर जी, अंत में एक रैपिड फायर राउंड करना चाहूंगी आपसे, और आपको बहुत ही संक्षेप में जवाब देने हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, भारत को 2024 के चुनाव में इनमें से कौन नरेंद्र मोदी को दे सकता है चैलेंज? ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार? सब मिलकर भी आ जाएं तब भी कुछ नहीं होने वाला। देश में चुनाव समय पर या जल्दी? यही समय है, सही समय है। यानी कि यही समय है, मतलब अब जल्दी? आने वाला समय सही समय है, अब भी है, आगे भी, और समय पर ही सब ठीक होता है। तीसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, भारत की जो इमेज है उसके लिए G20 का समिट जरूरी, या उसके लिए इसरो के साइंटिस्ट की अचीवमेंट जरूरी, या तीसरा भारत जो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है वो जरूरी? हर किसी का बहुत बड़ा योगदान है, कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, तुलना ही नहीं की जा सकती। ये हर एक सितारे के रूप में भारत के मुकुट पे सजता है। चंद्रयान मिशन हो, या पहले मंगलयान मिशन हो, या G20 की सफलता हो, या फिर आपकी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो, ये एक एक सितारे आप कह लीजिए हीरे की तरह भारत माँ के मुकुट पे सजते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन इस संसद सत्र में, या सिर्फ एक शगुफा? जितनी जल्द देश के लिए उतना अच्छा। 2024 में? 2024 नरेंद्र मोदी जी की विजय और भारत के बढ़ते कदमों को और ताकत देना। हमारे साथ बात करने के लिए थैंक यू वेरी मच मिस्टर अनुराग ठाकुर फॉर फ्रैंकली एंड हैंडलिंग all the balls, even the googlies, with a straight bat. Thank you very much for joining.